टुडे आई नीड टू आज मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाने वाली हूँ. बिफोर आई एम गोइंग थ्रू द इनकम टैक्स, फर्स्ट आई नीड टू नो what is taxation, how many types of taxation are there. So this topic is really very interesting topic and also very easy topic. So let's start income tax. And so now I'm going to explain what is taxation and how many types of taxation. Taxation is divided in two parts, that is direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एंड कस्टम एक्ट आता है. इन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाली हूँ. बिफोर आई एम गोइंग थ्रू डायरेक्ट टैक्स, आई लेट यू नो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हेल्प्स you to understand the direct tax. What is first, before I am going through the direct tax, I'll let you know what is indirect tax. Indirect tax is वो टैक्स है जो कि हम लोग डेली पे करते हैं गवर्नमेंट को अपने हर एक हाउस होल्ड आइटम्स पे, द आइटम्स विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग अ पेन. पेन में भी हम लोग पेन यूज़ करते हैं, हम लोग बुक्स यूज़ करते हैं, सब पे टैक्स पे करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ अ पेन MRP that is 50 rupees, that is inclusive of taxes written in the price, written in the pen. So we are paying taxes in every item whatever we use. So this taxes is shifted from one person to another, while the direct taxes is not shifted from one person to another. In case of direct tax, the amount of tax is beared by the person to whom the tax is levied, to whom the tax is imposed or levied. And in case of indirect tax, the burden is shifted from one person to another. So the direct tax is directly paid to the government. That's why it pinches a lot to the person to whom it is imposed. But the indirect tax is not pinching taxes. It's we pay on easily. We are going to pay and we don't know we are paying the tax. So now I'm going to explain that direct tax is not shifted, but indirect tax is shifted. It's progressive in nature. These taxes is progressive. We can say progressive in nature. Direct tax is progressive in nature, otherwise indirect tax is regressive in nature. Regressive in nature. Progressive, direct tax is progressive in nature, while the indirect tax is regressive in nature. आप बोलोगे प्रोग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव क्या है? रिग्रेसिव वो है, सपोज एक ब्रेड आप लेने, एक अमीर आदमी भी ब्रेड लेने जाता है और एक गरीब आदमी भी दे दे. इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये अमीर आदमी है तो इससे ब्रेड का दाम ज़्यादा लेते हैं, गरीब आदमी है इससे ब्रेड का दाम, दोनों को इक्वल अमाउंट ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है. सपोज एक ब्रेड का दाम सपोज 30 रुपीज़ है, तो आज गरीब आदमी भी 30 रुपया पे करेगा और अमीर आदमी भी 30 रुपया पड़ेगा. तो वो रिग्रेसिव इन नेचर है. इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर. इट डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिच एंड पुअर. But in case of direct tax, it is levied on the income, high income earning person and low income earning person. So direct tax progressive nature इनका है, क्योंकि वो उस पर्सन पे ज़्यादा लगता है जो कि इनकम ज़्यादा अर्न करते हैं,
और जो इनकम अर्न करते हैं नहीं करते उन पे ये टैक्स नहीं एप्लीकेबल होता। और इनडायरेक्ट टैक्स सब पर्सन, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, वेदर यू आर रिच और पुअर, सब पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। मतलब वो कुछ भी आइटम लेंगे तो उन पे डायरेक्ट टैक्स वो पे, इनडायरेक्ट टैक्स वो पे करके ही लेंगे। इट इज़ लेवीड ऑन पर्सन। डायरेक्ट टैक्स लेवीड होता है पर्सन पे, इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज। ठीक है, आगे चले। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल, सपोज indirect tax example. Suppose for example we had purchased something, this is the manufacturer, this is the wholesaler, this is the retailer and this is the consumer. Manufacturer purchased goods at 100 rupees and he paid tax on it 30 rupees and sell that goods at 130 to the wholesaler, and that 30 rupees which he pays on his goods, मैन्युफैक्चर क्या करता है, परचेज किया 100 रुपीज़ पे, टैक्स पे किया 30 रुपया और 130 वो सेल कर दिया टू द होलसेलर, एंड दैट 30 रुपीज़ द बर्डन ऑफ टैक्स ही शिफ्टेड टू द होलसेलर एंड अल्टीमेटली रिकवर हिज टैक्स फ्रॉम द होलसेलर एंड पेड टू द गवर्नमेंट ₹30। गवर्नमेंट को अपना पैसा मिल गया, वो होलसेलर से रिकवर कर लिया। अब होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल करता है एट ₹175। रिटेलर ने अपना टैक्स कवर कर लिया, होलसेलर ने अपना टैक्स कवर कर लिया रिटेलर से, और रिटेलर ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, अल्टीमेटली दोज हु कंज्यूम द गुड्स। रिटेलर ने अपना गुड्स सेल किया कंज्यूमर पे, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम किया गुड्स ने, एंड अल्टीमेटली टैक्स इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने अल्टीमेटली टैक्स पे किया एट लास्ट। सो द बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन केस ऑफ indirect tax, but in case of direct tax the tax is imposed on the person to whom it is levied. Now we are going to discuss on income tax law. What does it covers? अब मैं आपको बताने वाली हूँ इनकम टैक्स लॉ क्या क्या कवर करता है। बिफोर वी आर गोइंग थ्रू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी हैव टू नो दैट इनकम टैक्स लॉ क्या है। इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ एक लॉ है जो कि बनाया है गवर्नमेंट ने, और उसी को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो हमको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता है, इनकम टैक्स रूल्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, कोर्ट केसेस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, एक्सप्लेनेशन आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहला क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर में इनकम टैक्स लॉ के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या बोलता है कि हम लोग को क्या करना है, व्हाट टू डू।
एसएससी को क्या क्या करना है वो कौन बताएगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें सब लिखा हुआ है कि हमको क्या क्या करना है। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स रूल्स। ये बताता है हाउ टू डू, कि हम लोग को कैसे करना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये रूल्स बताता है इनकम टैक्स रूल 1960। अब आता है आपका सर्कुलर्स, जो कि कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो सर्कुलर के थ्रू, कोई भी चीज़ अगर जो हमें समझ नहीं आ रही है उसका भी एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सप्लेनेशन। फिर हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को ये सब फॉलो करना है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशंस, कोर्ट केसेस, ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल ऑर्डर, ये सब, ये जजमेंटल सारे हम लोग को इनकम टैक्स में कवर करना है। इनकम टैक्स ये सब बोलता है, इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि अब इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशन, कोर्ट केसेस, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशंस भी आते हैं। डे टू डे मतलब टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इज सर्कुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू whom we are required to follow or to make changes in our income tax act. So ये हो गया इनकम टैक्स लॉ में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कैसे करना है, इनकम टैक्स वो क्या करना है, इनकम टैक्स रूल्स बोलता है कैसे करना है, सर्कुलर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्सप्लेनेशन आते हैं, कोर्ट केसेस और ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, जजमेंटल इश्यूज आते हैं और नोटिफिकेशन, ये सब इनकम टैक्स लॉ बोलता है। अब हम आगे बढ़ने के आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊँगी। इनकम टैक्स में मैं आपको, ये नहीं है कि पहले मैंने आपको पीजीबी पढ़ा दिया या हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगी। मैं आपको सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगी, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऐसे करके पढ़ाऊँगी। तो आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 19 सेक्शन 1 बताती हूँ। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 बोलता है, सेक्शन 1 बोलता है अबाउट द शॉर्ट एंटाइटलमेंट कमेंसमेंट एंड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो अपने अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सेक्शन 1 बोलेंगे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स सेक्शन वाइज। हम लोग को याद रखना है कि अगर डेप्रिसिएशन का सेक्शन अगर हम लोग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे सेक्शन 32, ये नहीं बोलेंगे डेप्रिसिएशन में सेक्शन 32 है, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन है। तो हम लोग सेक्शन वाइज याद करेंगे। सेक्शन 1 बोलता है अबाउट द नामकरण ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का नामकरण कैसे हुआ था, सेक्शन 1 बोलता है। सेक्शन 1 itself says that this section is the नामकरण ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि दिस इज, मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 हूँ। दिस इज ए इनकम टैक्स एक्ट 1961।
पॉइंट नंबर 2 ये बोल रहा है कि मैं इनकम टैक्स एक्ट हूँ 1961 सेक्शन 1 बोलता है अबाउट द नामकरण ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ये बोलता है कि इट अप्लाइज, ये किस पे अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू throughout India except throughout India, it applies throughout India inclusive of Jammu and Kashmir. So this section says that I am an income tax act. This is an income tax act 1961. It applies throughout India inclusive of जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पूरे भारत पे लगेगा इंक्लूसिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट नंबर 3 बोलता है इट अप्लाइज, इट इज इफेक्टिव with effects from 1962। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है, ये एक्ट जब बना है वो 61 में बना है और ये इफेक्टिव हुआ है 1962 से। तो ये बना जब, सपोज इसका भी मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज हमारा प्रीवियस ईयर होता है, फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो साल है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। मतलब इस साल हम ऐसे, मतलब जिस साल हमारा असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ईयर होता है AY, और जिस साल हम कमाई करते हैं मतलब अर्निंग करते हैं वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। तो ये वही बोल रहा है कि ये मेरा जन्म हुआ है 1961 में, मगर मैं अप्लाई होता हूँ 1962 से। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2021, पर हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। मतलब यहाँ पे हम लोग ने अर्न किया अपना इनकम और यहाँ हम लोग ने एसेस किया, एसेस। तो ये यहाँ का इनकम हम यहाँ पे करेंगे, इस साल पे करेंगे। तो सारे साल हम लोग अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, और असेसमेंट ईयर में हम लोग उस ईयर का टैक्स पे करते हैं। सपोज इस ईयर में हम लोग ने असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ये हो गया, फिर ये क्या हुआ, ये नेक्स्ट ईयर इस साल हम लोग ने अर्न किया और नेक्स्ट ईयर हम लोग ने एसेस किया इस साल का। तो इसका ये इस साल जब हम लोग ने अर्न किया तो हम लोग ने 22-23 में एसेस किया। तो ये होता है मतलब एक प्रोसेस कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। सपोज प्रीवियस ईयर हमारा कब से चालू होगा? प्रीवियस ईयर हमारा चालू होता है 1/4/2020 से 31 मार्च 21, और असेसमेंट ईयर होता है हमारा 1/4/2021 से 31 मार्च 2022। मतलब इस साल हम लोग ने कमाई की और इस साल उस कमाई का टैक्स पे किया। अब इस साल जो कमाई की है उसका टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे 1/4/2022 में, और 31/3/2023 तक हम लोग पे करेंगे। मतलब इस साल की कमाई को हम नेक्स्ट ईयर, इस साल हम अर्न करें, इस साल हम लोग ने टैक्स पे किया प्रीवियस ईयर का, अब इस साल जो कमाई किया उसका टैक्स नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में करेंगे। तो ये होता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसको भी हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं सेक्शन 2 क्या बताता है? सेक्शन 2 पूरा डेफिनेशन है।
इसमें बहुत सारे लाइन वाइज डेफिनेशंस है जो कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब रिकवर एक एक करके रिकवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ डेफिनेशंस पहले ही पढ़ा देना चाहती हूँ जिससे कि आपको जो जो बेसिक डेफिनेशंस है वो क्लियर हो जाए। जो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसका डेफिनेशन क्लियर रहेगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग ने यहाँ पढ़ी। सेक्शन 2 पूरा डेफिनेशन कवर करता है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ एसएससी, प्रीवियस ईयर डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस है इसमें। मैं कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस आपको आज बताऊंगी। सेक्शन 231 क्या बोलता है? सेक्शन 231 आपको डेफिनेशन ऑफ पर्सन बोलता है। ऑफ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अब पर्सन क्या है? पर्सन क्या है और पर्सन का डेफिनेशन क्यों एक्सप्लेन किया है? क्योंकि पर्सन पे ही टैक्स लगाएंगे। आज आईटीओ जो टैक्स लगाएगा वो पर्सन पे ही लगाएगा। तो पर्सन में कौन कौन आएगा? पर्सन में कौन कौन आएगा? आप मैं तो आएंगे ही, जो अर्न कर रहे हैं, जो नहीं अर्न कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे पर्सन के लिए। इट्स अ वेरी वाइडर डेफिनेशन। The ITO has widened the definition, includes everyone in this definition. Nobody is there to escape from the definition of person as per Income Tax Act. तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन का डेफिनेशन में कौन कौन आता है? पहले तो पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल। Individual, whether he is married or not married, that is not the matter. He may be the individual. Individual covers everything. Second is HUF. HUF मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप बोलोगे क्या है? अब इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, मैं न्यूट्रल फैमिली के बारे में बता रही हूँ आपको, जॉइंट फैमिली के बारे में। बोथ आर कवर्ड इन HUF, बोथ न्यूट्रल फैमिली ऑल्सो एंड joint family also. In case of neutral family, there are 4 members in the family, that is Mr. X, Mrs. X, Mr. P and Miss Q. Mr. X is the karta of the family, Mrs. X is the wife of the Mr. X, Mr. P is the son of Mr. X and Miss Q is the daughter of Mr. X. So he has one property, ancestor property. Mr. X has one ancestor property and they are earning some income on that property. Suppose they has a ancestor property, ancestor's property. They are earning income on, so the income which they earn, like rental income, any rental income, the income which they earn, Mr. X which they earn is not chargeable on Mr. X. That is chargeable onto the whole family. Means in HUF, in the form of HUF. So the tax liability is not on Mr. X, the tax liability arises on whole family. The whole family is getting the proportion of that income, not only Mr. X. That is the undivided family. In case of neutral family, and in case of joint family, suppose Mr. X is there, Mr. Y is there. He is the brother of Mr. X.
Mrs. Y is there and their children. So the whole family is liable for that taxation and for that income. Whole family are liable for that income and also the part of tax they are paying. Suppose Mr. X is doing some other business also, or he is a salaried employee. So the salary part is not included in HUF. That part is chargeable in his individual return. But the ancestor property is charged under the head HUF. So this is the concept of HUF. There are two types of HUF. Now I am going to. There are two types of HUF in India, like Mitra, Mitrakshara and Daya Bhagya. There are two types of HUF, Daya Bhagya. Mitrakshara Sampradaya and Daya Bhag Sampradaya. मित्राक्षरा संप्रदाय में क्या बोलते हैं? मित्राक्षरा संप्रदाय में जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम उसका राइट हो जाता है उस प्रॉपर्टी पे. मतलब अगर HUF का कोई प्रॉपर्टी पड़ा है, अगर इंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है उस टाइम ही उसका राइट हो जाता है इन केस ऑफ मित्राक्षरा संप्रदाय में. दया भाग में एज दिस नेम ओनली इंसिस्ट दैट इट्स अ मित्र, मतलब बच्चा रो नहीं रहा है, वो खुशी. अब मैं क्या बोलूँ आपको, ये मतलब बहुत फ्रेंडली टाइप है कि बच्चा जिस टाइम जन्म लिया उसका प्रॉपर्टी में राइट हो गया, वो खुशी से पागल हो गया. और दया भाग्य में बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका राइट नहीं होता प्रॉपर्टी पे. उसका राइट जब होता है जब उसके फादर, मतलब फादर की दया पे वो जीता है. इसीलिए इसका दया भाग्य संप्रदाय है. मतलब जब फादर का डेथ हो जाएगा तब उसका राइट आएगा उस प्रॉपर्टी पे. तो ये एप्लीकेबल होता है, ये दया भाग्य एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ इन द स्टेट्स ऑफ Assam, West Bengal, and in some parts of Jammu Kashmir. दया भाग्य संप्रदाय में. एंड मित्राक्षरा संप्रदाय में इट्स एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ द मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ HUF. HUF को हम डिटेल में जब हम HUF का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पूरा पढ़ेंगे. अभी मैं आपको बेसिक समझा देने वाली हूँ कि इंडिविजुअल क्या है, HUF क्या है, जो कि अपना पर्सन का डेफिनेशन कवर हो जाएगा. तो पर्सन में क्या क्या आता है, इंडिविजुअल आया, फिर HUF आया, नेक्स्ट अपना आया पार्टनरशिप फर्म. सपोज 4 आदमी लोग ABCD मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोले एंड दे मेड अ पार्टनरशिप डीड एज पर सेक्शन 184 के हिसाब से. मतलब पार्टनरशिप होने के हम लोग को कंडीशन फुलफ़िल करने पड़ेंगे सेक्शन 184 के. सेक्शन 184 में क्या बोलता है? सेक्शन 184 में बोलता है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी और प्रोपोर्शनेटली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी आपको उसका भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, सब तीनों पार्टनर्स का या चारों पार्टनर जितने भी पार्टनर है उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा. ये पार्टनरशिप बोलता है. पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLP को भी हम लोग डेफिनेशन में कवर कर ली. नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4, कंपनी. कंपनी आपकी कोई भी हो सकती है,
whether private company, public company, government company, foreign company, any company, all are included in the definition of person. So अभी हम लोग ने क्या जाना कि इंडिविजुअल्स होते हैं, HUF होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है और कंपनी होता है, ये सब पर्सनस है। सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं पर्सन है, ये सब को हम लोग ने पर्सन के डेफिनेशन में डाल रखा है। मतलब गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको डेफिनेशन में डाल दिया। नाउ कम्स, इसके बाद और किसको डाला? इवन गवर्नमेंट ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने डाल दिया AOP, BOI। AOP और BOI क्या होता है मैं आपको बताती हूँ आगे। नंबर 6 होता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी, लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट की है वो सब लोकल अथॉरिटी कवर करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट से टैक्स ले रहा है, मतलब गवर्नमेंट भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो लोकल अथॉरिटी मतलब ये म्यूनिसिपल है, आपका नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो सब लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन। नाउ नंबर 7 इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो है, सपोज मेरी एक कंपनी है, वो रन नहीं करी प्रॉपरली और वो लिक्विडेशन में चली गई। अब मैं उसको क्या करने वाली हूँ, मैं गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया, मतलब कोर्ट केस हुआ, ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर में ये आया कि आप लिक्विडेटर के हैंड में अपना सारा एसेट लाइबिलिटी दे देंगे। अब लिक्विडेटर उसका मालिक हो गया, अल्टीमेटली सारा एसेट लाइबिलिटी लिक्विडेटर के हाथ में चला गया। अब लिक्विडेटर क्या कर रहा है कि अभी प्रोसेसिंग में टाइम है, तो वो पूरे बिजनेस को ऐसे बंद नहीं करता है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन रन करता है, बिजनेस चलाता है। अब इन दैट टाइम, इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, अगर वो कोई इनकम अर्न करता है तो लिक्विडेटर भी एज ए पर्सन के डेफिनेशन में आ जाता है। और लिक्विडेटर जो कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो भी लायबल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए इन द इनकम विच ही अर्न एट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन इन फ्रॉम द लिक्विडेटर कंपनी। तो ये मैं आपको ऐसे समझाने वाली हूँ कि लिक्विडेटर जो कि कंपनी को लिक्विडेट करना है, सारा एसेट लाइबिलिटी उसके हाथ में, पूरा बिजनेस उसके हाथ में दे दिया एज पर ऑर्डर ऑफ NCLT या गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो वो भी अगर बिजनेस रन करता है, उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो किसको देना पड़ेगा? ओनर को नहीं देना पड़ेगा, द पर्सन हु लिक्विडेट द कंपनी, जिसके हाथ में कंपनी है, लिक्विडेटर के हैंड में, उसको पे करना। तो इसीलिए उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला जाता है। अब आइए AOP क्या होता है और BOI क्या होता है? BOI मतलब क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब वो इंडिविजुअल्स, मतलब 4-5 इंडिविजुअल मिलके अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप नहीं है, उन्होंने डीड नहीं बनाई है, और पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल प्रोपोर्शनेट रेशियो या डिवाइडेड नहीं है, तो अगर वो पार्टनरशिप नहीं होता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, तो वो BOI के डेफिनेशन में चला जाता है। तो अगर 4-5 इंडिविजुअल्स मिल के, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मिल के अगर कोई बिजनेस रन करते हैं, तो वो BOI, अगर वो पार्टनरशिप एक्ट का कंडीशन फुलफिल नहीं करता। अब AOP क्या है? AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन के डेफिनेशन में सब आ रहा है, इंडिविजुअल, AOP, BOI, ट्रस्ट, पार्टनरशिप कंपनी, सब। सपोज इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी मिलके एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाए, तीनों मिलके एक बिजनेस चालू किया, तो वो ये जो है वो AOP हो जाता है, मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सॉरी, मैं आपको, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 31। तो आज मैंने इतना आपको कवर किया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में और बाकी डेफिनेशंस पहले आपको कवर करवाऊंगी, फिर मैं
स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊँगी क्या है इनकम टैक्स, सेक्शन वाइज आपको डिटेल से सब कुछ पढ़ाऊँगी। तो अगर आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरा समझाना समझ में आया हो तो यू कैन मतलब आपकी यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन share my channel to your friends. Thank you.